हमारे संग आज जुड़ रहे हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के हाल ही में बनाए गए नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। जी शुक्रिया। पहला सवाल अबाउट योर अपॉइंटमेंट। फर्स्टली, हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट एंड व्हाट विल योर प्रायोरिटीज नाउ बी? See, the thing is that party high command has decided that I should deliver the role of president of PCC. So that is it, and I am always ready to whatever responsibility party gives me. So this is not the first time that I am been appointed as PCC president. So for me, becoming a PCC president is not so important. Delivering as PCC president is much more important. So my job is to strengthen the organization at the grassroots level and to take everybody along with me. I never believe in unilateral decisions. I believe in collective leadership. I'll try that all of us together we take decisions and move together. Somebody asked me a question that when I was appointed president earlier, and what is the difference between that time and now? At that time, our organization was little strong, but people were not ready to listen to us. This time, people are ready to listen to us, but our organization is little weaker. So we have to concentrate on our organization. Rahul ji, after Bharat Jodo Yatra, the way he is meeting with all people of different fields of society, and especially downtrodden ones, whom nobody is listening. This government is more busy with multinational companies and millionaires rather than meeting the common man. Rahulji is every day, sometime he is going to the farmers, sometime to the women, youth, sometime to coolies, sometimes to the Golden Temple is also one of the things, but sometimes to this carpenters and this type of people whom nobody is listening. Now all these downtrodden people, common people, middle class people, they are looking toward one person only, and his name is Rahul Gandhi. When he is trying so hard to become their voice, Congress organization cannot afford to be at the back seat. So that is what we are trying to do in Delhi also. Absolutely, we are seeing you've got to work from day one, chairing meetings, etc. मगर फिर हम बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को पूरे देश देख रहा है, एक उभरते हुए नेता के तौर पे आप भी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, मगर फिर गठबंधन क्यों? गठबंधन से पार्टी और कमज़ोर नहीं होगी? देखिए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि देश के अंदर जिस तरीके का माहौल है, इसमें जो है पूरे देश में इस समय जो है एकजुटता के साथ इस सरकार को हटाने की बात है। जो सरकार देश में भय का माहौल बना रही है, इस देश के बेसिक करेक्टर को ख़त्म कर रही है, इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर रही है। इन दिल्ली ऑल्सो आई मे नॉट बी लाइकिंग आम आदमी पार्टी. I don't agree with what they are doing. They are not able to take the development at the same pace which used to be during the Congress regime. There is no doubt about that. But how can you destroy an institution? Bharatiya Janata Party and its central government is destroying an institution. It is not necessary they will always remain in power. We were power in 15 years, we are not in power. BJP earlier was in power in Delhi, they are not in power. It is not necessary that after 10 years this Arvind Kejriwal government will be in power or not in power. Somebody else will come. But why are you destroying the institution of Delhi government? That institution is not a किसी की बपोती नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल की, कांग्रेस की या बीजेपी की बपोती नहीं है। वो दिल्ली के सरकारों का, दिल्ली के लोगों का इंस्टीट्यूशन है। आप उस इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हो तो दिल्ली के लोगों की, आप लोकतंत्र की आवाज़ को दबा रहे हो। कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा अगर वो अपने चपरासी की भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता? हाउ कैन ही डू एनी जस्टिस टू पीपल ऑफ दिल्ली? वो अलग बात है कि ये सरकार वैसे भी काम नहीं करना चाहती, बट आप उस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करके गए, आने वाली सरकारों के लिए भी आप दिल्ली की गवर्नमेंट का गला घोट रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंस्टीट्यूशन बर्बाद कर रही है। तो इस समय देश को बड़ा खतरा जो है वो उन लोगों से सावधान रहने का है जो इस देश की जो मेन बुनियाद है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये बाकी लोगों की कमियां तो बाद में देखी जा सकती हैं, पहले तो जिनसे इस देश को खतरा है, आज ये इंस्टीट्यूशन बर्बाद कर रहे हैं। क्या पता कल को जो है ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके साथ खिलवाड़ ना करें, उसके भी काम शुरू कर दिए इन्होंने।
तो पहले तो जो है इनसे देश को बचाने की ज़रूरत है। जी। मगर हम देख रहे हैं कि एक और अहम मुद्दा आया है सामने, जो गठबंधन जिसके समर्थन में है, जाति जनगणना का। आपके नेता भी कह रहे हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में होना चाहिए, मगर ये क्यों, अरविंदर जी? मैं आई विल आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। आरएसएस एंड बीजेपी बोथ आर अगेंस्ट दिस, ठीक है, जाति जनगणना के खिलाफ हैं। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, और मैं तो इस सरकार से, क्योंकि ये सरकार का कभी भी ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन में रहा ही नहीं, ये कोरे नारे देके जो है लोगों को धर्म के नाम पे जा के लोगों की देशभक्ति की भावना को कैश करके इलेक्शन जीतते रहे। कोई भी सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाएगी स्पेशली फॉर द डाउन ट्रोडन या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, हाउ विल, उनको कैसे पता लगेगा कि मुझे किस योजना में क्या बजट रखना है, किस योजना को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अनटिल अनलेस ही नोज कि जी मेरे पास इतनी इनकम वाले इतने लोग रहते हैं, इस जाति के लोग इतने, आप कैसे योजना बनाओगे? तो जातिगत जनगणना जो है एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है। जो लोग इसको केवल चुनाव से और राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर सपोज मुझे फिशरमैन के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि दिल्ली के अंदर कितने फिशरमैन रहते हैं और उनकी क्या बुनियादी प्रॉब्लम है, तो हाउ विल आई मेक अ पॉलिसी? अब इसको सही कह लीजिए, गलत कर लीजिए, हमारी कंट्री में जो है हर कॉर्नर में, और मैं समझता हूँ यही भारत की विशेषता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद अलग तरीके का आदमी रहता है, अलग कास्ट का रहता है, अलग क्रीड का रहता है, अलग कुजीन खाता है, अलग तरीके से ड्रेस होता है। तो टिल द टाइम आई डोंट नो कि कौन लोग हमारे देश में रहते हैं, कैसे योजना बनेगी उनकी तरक्की की, उन्नति की, किन लोगों को फ्री एजुकेशन चाहिए, किन को नहीं चाहिए, कहाँ जो है हमको हर परिवार में एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है और कहाँ नहीं है, ये सब कैसे पता लगेगा जब तक आपके पास डाटाज नहीं होंगे? मगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत जो है 21वीं सदी में सबसे उभर चुका है और विपक्ष दल दोबारा जात पात की राजनीति कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं ना जो कह रहे थे मैं ओबीसी से हूँ, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी खुद ही बता रहे थे कि वो ओबीसी से हैं। तो अगर भारत इतनी तेज़ी से चल रहा है तो उनको बताने की ये ज़रूरत नहीं है। एक और मुद्दा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा प्रदूषण के बारे में। अभी सर्दियां जो हैं वो आने वाली हैं, प्रदूषण का जो की स्थिति है दोबारा उससे दिल्ली जूझेगी। अब तो पंजाब और दिल्ली में एक ही सरकार की पार्टी चला रही है दोनों राज्य को, तो आपको लगता है कि सहयोग से चलना चाहिए, दिल्ली वालों को साफ हवा लेने की आवश्यकता है? देखिए, ये मेरे लिए बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, नॉट ओनली एज अ कांग्रेस पॉलिटिशियन बट एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली जब भी सर्दी आती है, दोनों सरकारें पॉलिटिक्स करने के अलावा कोई काम करती नहीं है और चुपचाप जो है वो किसानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के निकल जाती हैं कि पराली जल रही है, इसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों से पूछना चाहता हूँ कि देश में एग्रीकल्चर बेस बढ़ा है कि घटा है? एक तरफ तो देश में अगर एग्रीकल्चर बेस घटा है, जो सब डाटाज भी कहते हैं, और नेचुरली जब टाउन्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ेगा। तो पहले पराली ज़्यादा जलती थी, 2008 रादर 2008 से लेके 2011-12 तक आप देखिए, दिल्ली वाज द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और हमको कोपेनहेगन में और बाकी जगह यूरोपियन कंट्रीज़ में बुला के दिल्ली को अवार्ड भी दिया गया एज अ ग्रीनेस्ट कैपिटल का। हमारी सरकार और हमारी मुख्यमंत्री विशेष करके उनका नाम लूँगा, यूज टू इंश्योर पर्सनली कि ग्रीनरी बेल्ट बढ़े, सेंटर वर्ड्स के अंदर जो है पौधे लगें, ठीक है, और रेगुलर पौधों के ऊपर पानी गिरे, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज द बेस्ट, लोअर मेट्रो को हम लेके आए, मोनो रेल आनी थी जिसका कहीं आता पता नहीं। दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो पराली एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। द मेन रीज़न इज़ फेलियर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फेलियर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर ड्यू टू बिकॉज सेंटर वर्ड्स पे पौधे नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, मिट्टी उड़ रही है। इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? इसमें किसान कहाँ से जिम्मेवार हो गया कि आप बस नहीं खरीद पाए? इसमें किसान कहाँ से जिम्मेवार हो गया? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आती है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है, वो मेट्रो इस बात के लिए जानी जाती थी कि समय से पहले अपने काम को ख़त्म करे। आज वो प्रोजेक्ट 5-5 साल रिले हो रहे हैं। और मेट्रो इज़ नॉट ओनली द ऑल्टरनेटिव ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोनो रेल
पॉड रेल, ये सब चीज़ें कांग्रेस की गवर्नमेंट प्लान करके गई थी, वो क्या हुआ उनका? मोनोरेल के तो टेंडर्स भी हो गए थे। तो इन सब बातों का जवाब तो इनको देना पड़ेगा, और ये हर चीज़ में फेलियर हुए हैं। और आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मेरे लिए ये तकलीफ की बात है कि फ्रॉम ग्रीनेस्ट कैपिटल टू द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, इस 8 साल के सफ़र की इनको जवाब देना पड़ेगा कि हाउ दिल्ली टर्न फ्रॉम ग्रीनेस्ट टू मोस्ट पॉल्यूटेड। और हर फील्ड में ये हाल है। आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो उसका जवाब दे ही रहा हूँ। कोविड में जो हालत रही देश की, वो आपने देखी है, चलो वो भी हम भूल गए, ये सारे देश पूरी दुनिया में हुआ। आप कह रहे हो हमने अस्पतालों में बहुत कमाल कर दिया, लोग शमशान घाट की सिफारिश कराते थे, आप हॉस्पिटल में बेड की बात तो छोड़ दो, चलिए वो भी जो होना तो हो गया। पोस्ट कोविड क्या किया आपने दोनों सरकारों ने? कितने हॉस्पिटल जोड़ दिए दिल्ली में? ऑक्सीजन की तकलीफ होती थी, आपने कितने दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की पाइप लगा दी है कि ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन आए? पोस्ट कोविड ही बता दीजिए क्या किया। प्री कोविड तो चलो हम मान गए आपको, अब दोबारा कभी कोई ऐसी महामारी आ गई तो दिल्ली अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ऐसे हाथों में आ गई है जिनका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिल्ली। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। हम देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो है रिश्ते बिगड़ गए हैं। हम देख रहे हैं सिख समुदाय को कहीं ना कहीं इस सब में घेरा जा रहा है। बहुत सारे खालिस्तानी लोग हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और उनकी वजह से पूरा समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। अटैक्स भी बढ़ रहे हैं विदेश में सिख लोगों के ऊपर ही। तो इस पे आप क्या कहेंगे अरविंदर जी? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बहुत सारे खालिस्तानी हैं। 99.9% जो सिख हैं उनका विश्वास अपने देश में और अपने देश के लिए किसी भी कुर्बानी को देने के लिए वो पीछे नहीं है, चाहे वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो अब्रॉड के अंदर रह गए हैं। और कोई भी उनको जस्टिफाई नहीं करता है और कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इवन जब पंजाब में भी मिलिटेंसी थी तो इंडिया के सिख जो है, कुछ एक लोगों को अगर छोड़ दो, तो वो पूर्णतः भारत में और भारत के नागरिक होने में गर्व भी महसूस करते हैं और विश्वास रखते हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि कृपया छोटी राजनीति करने के चक्कर में उन 100-200 लोगों को इतना मत पब्लिसाइज करो कि ऐसे लगे जब हम ही नहीं उनको सीरियसली ले रहे। कोई 99.9% सिख जो है वो खालिस्तानियों को सीरियसली नहीं लेते, तो आप क्यों ले रहे हो? हम सब भारत के हैं, भारत हमारा देश है, और उनको टॉलरेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस देश के लिए कोई भी कुर्बानी देनी हो तो सिख कभी पीछे ना पहले हटा है ना आगे हटेगा। तो प्लीज़ डोंट ग्लोरीफाई देम, मैं तो ये अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले चुनावों के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन आकाश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स, दिल्ली।